योगः कर्मसु कौशलम्. A very good afternoon to all. I am Sundar Armugam from Puducherry. I am indeed honored and grateful to HRDC Gujarat University for giving me the opportunity to introduce today's resource person. Our today's resource person is Professor Dr. Naresh Shukla. He was born on 12th of October 1972 at Dhanala. He completed his higher education from Gandhinagar and attained his degrees of MA and PhD from Bhasha Bhavan, Gujarat University. His areas of interest are literature, painting, photography, astronomy, interdisciplinary research, etc. While graduating, he started writing many short stories. He also published a magazine called Pachhad. He is also the chief editor of Sahitya Setu. After completing his MA, he also worked as a part-time lecturer. He rendered his services in a few other institutions before moving to Gujarat Public Service Commission, that is Gujarat Educational Service. Currently, he is rendering his services to the Department of Gujarati, Veer Narmad South Gujarat University, Surat, since 2013. He has published a large collection of short stories which are very worth reading. He is also a member of Board of Studies of Pathya Pustak Nirman, University Granth Nirman Board, as well as of other universities. He has an impressive record of organizing various programs. He has been training budding talents from across Gujarat into poetry writing, short story writing, script writing, etc. He has also delivered keynote speeches and lectures on different topics in various seminars and workshops outside the state of Gujarat. He has an excellent and wide experience of more than 21 years. He has 60 plus publications to his credit, and he has also authored 14 plus books. The most important achievement as far as we budding professionals are concerned is that he has also successfully completed UGC project worth 32 lakhs. His publications since 2015 is 44. He has delivered 53 talks at various levels and platforms since the year 2015. He has also successfully guided 13 doctoral candidates and 2 are currently pursuing. The topic for today's special class or this live session is relation between arts and social science. Now I invite our resource person for today, Professor Dr. Naresh Shukla ji. The platform is all yours. Thank you. नमस्कार, आप सभी का ये व्याख्यान में स्वागत है। ज़्यादातर समाजशास्त्र के अध्यापक है ऐसी मुझे माहिती मिली। यह रिफ्रेशर कोर्स आशा है कि कई मायनों में आपके लिए सुफल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता होगा। नए नए विषय पर विचार विमर्श करते हुए बीत रहे इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेंद्र जानी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कलाओं और समाज विज्ञानों के संबंध के बारे में सोचने का जो अवसर प्रदान किया, नए छोर से सोचने का जो अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं उनका आभारी। जब बात करने जा रहे हैं कलाओं और विभिन्न मानव विद्याओं के संबंध के बारे में, तब मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें जाना पड़ेगा पीछे, बहुत ही पीछे, लाखों नहीं करोड़ों साल पूर्व, जब ये नहीं थे ऐसे खंड और देश, भूगोल कई मायनों में अलग रूप धारण किए हुआ था। खासकर से ज्वालामुखी पर्वत से लेकर बर्फ से आच्छादित धरती थी, तब से लेकर आज तक कई करोड़ साल बीत चुके हैं। मानव
जब हम उत्क्रांतिवाद को पढ़ते हैं तब पता चलता है कि मानव इस क्रम में कई बाद में आया है। अमीबा से लेकर डायनासोर जैसे विराट कद वाले प्राणियों से भरी हुई, जीवों से भरी हुई, सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े बड़े जीवों से भरी हुई ये धरती आजकल की नहीं है। लाखों साल का इतिहास हमें अब तो पता ही है। भूगोल का प्रभाव कहीं भी रहता है, चाहे बर्फ से भरे हुए एस्किमो जाति के लोग हो या तो घने जंगलों से भरे हुए अमेज़न के प्रदेश हो, नाइल नदी के आसपास खिली हुई संस्कृति हो या सिंधु के आसपास खिली हुई संस्कृति हो, या तो रशिया में बह रही वोल्गा नदी से हो, चीन की संस्कृति हो या जापान में, मानव संस्कृति का इतिहास पृथ्वी के इतिहास के मुकाबले नया है और वैविध्यपूर्ण है। हमें पता है कि जैसी संस्कृति पर्वतीय क्षेत्र में होती है ऐसी क्षेत्र में नहीं होती, अलग होती। इसी तरह से जैसे कि हमारे भारत की बात करें तो राजस्थान का जो कल्चर है वो अलग है आसाम के कल्चर से, क्योंकि वहाँ की भूगोल भिन्न है, वहाँ के जो रिसोर्सेस है वह भिन्न है। तो मानव जात का असर है, ये भूगोल की असर है, वो मानव जाति के समुदाय पर पड़े बिना नहीं रहती, उनसे प्रभाव से कभी भी मुक्त नहीं होती। तो ये बात तो हम सब जानते ही है। समाज शास्त्र के अध्यापक होने के नाते आप सब यह भी जानते हैं कि समाज के मूल्यों को, समाज में जुड़े रहने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई है वो सब पर भी भूगोल का प्रभाव काफी रहता है। खान पान में, रहन सहन में, पहनो, थोड़ी सीधी सी बात करो, कलाओं में कैसे भिन्नता आती है वो देखें। पर्वतीय क्षेत्र के जो नृत्य होते हैं उसमें देखा गया है कि जो लय, संगीत का जो लय है वो प्रलंब होता है, फास्ट नहीं होता। उनके मुकाबले मैदानी प्रदेश के जो नृत्य होते हैं उसमें फैलाव होता है, फास्ट रिदम पर जा सकते हैं क्योंकि फैलाव कर सकते हैं। गुजरात के उदाहरण के तौर पर मैं आपको बात करूं तो जो सापुतारा और यहाँ के डांग जिले में जो नृत्य, आदिवासी नृत्य करते हैं, यहाँ के लोक नृत्य करते हैं, वो पिरामिड की तरह ऊपर ऊपर करते हैं क्योंकि उनको इतनी जगह नहीं मिलती है, मैदानी जगह नहीं मिलती है। तो कला पर ये सीधा प्रभाव है भूगोल का। तो उनके मुकाबले पोरबंदर में देखे, कच्छ में देखे या तो राजस्थानी नृत्य देखे, वो अत्यंत फास्ट रिदम में मैदानों में फैला हुआ नृत्य रहता है। ये तो बहुत बड़ा एक जाड़े तौर पर दिया गया उदाहरण है, लेकिन ये बताता है कि भूगोल का प्रभाव कला पर पड़ता है। जैसा कि देखे तो जो लोक कला है इस पर ज्यादा उदाहरण मिलेंगे। लोक कला का ही मैंने उदाहरण दिया। लोक कलाओं में गाने में देखे, चित्र में देखे या तो संगीत में देखा जाते थे हम परंपरागत तौर से, वो कई प्राणी के चमड़े से या तो वहां मिलने वाली वनस्पतियों से बना हुआ होता है। भुर्ज पत्र का आविष्कार हिमालय के प्रदेशों में हुआ क्योंकि वहां वो उगते थे और वहां से लेकर पूरे भारत में वो विस्तारित हुए। तो ये प्रभाव है कलाओं पर, वो सीधा देखे जाने वाला प्रभाव। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर समाज शास्त्रीय अध्ययन जो करते हैं हम, तब हमें पता चलता है कि भूगोल का काफी प्रभाव मानस से लेकर समूह में रहन सहन के लिए, समूह में जो उनके रीत रिवाज है या पर्व होते हैं उसमें बड़े तौर पर देखा जा सकता है। एक तो ये बात रही। अब हम समाज शास्त्र में देखे तो कई मायनों में, पहले तो
समाज की व्याख्या आपके सामने तो नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं करना चाहता भी, लेकिन आदिकाल से लेकर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जहां से करता था, वो करने के लिए वो समूह में रहने लगा होगा। कई जीव रहते हैं, चींटियां रहती है, कई पशु पक्षी रहते हैं, वो समूह में अपना निर्वाह करते हैं, और जो जो प्रदेश उनके साथ अनुकूलन करना भी चाहता है, उस तरह मनुष्य ने भी समूह में रहता था। इसके आपसी व्यवहार एवं संबंधों से समाज का निर्माण हुआ। यह एक सामाजिक प्राणी कहलाया, वो हम सब जानते हैं। समाज शास्त्रियों ने जो व्याख्याएं दी है, हमारे जो पहले ऑगस्ट कॉम्ट ने समाज शास्त्र का जनक माना गया है, उन्होंने सीधे तौर पर कलाओं का संबंध नहीं स्वीकारा था, वो हम सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने सोशल फिजिक्स कहा और बाद में समाज शास्त्र के नाम से स्वीकार किया था। शब्द की उत्पत्ति वगैरह आप सब जानते हैं, तो इसमें नहीं जाता हूं, लेकिन समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता। हम पहले वो देख लेते हैं कि हमारी ये अध्ययन में समाज में क्या, व्यक्ति से लेकर पहला तो नर और मादा का युग्म, और उनके साथ जुड़े और एक नर मादा का युग्म जो ससुर कहलाते हैं, हम सास ससुर, उनका युग्म, यह छोटा सा यूनिट, और इससे बड़ा होता है समाज। इस तरह से हम देखते हैं, तो उसमें कोई न कोई भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिभाएं आती रहती है। मेरा अगला वीडियो आपने शायद देखा होगा, यदि प्रस्तुत किया है तो, उसमें मैंने बात की थी मानव जात 3 प्रतिभाओं पर चली है। प्रतिभा का 3 हिस्सों में विवरण किया गया है। एक तो प्रोडक्टिव, दूसरी रिप्रोडक्टिव और एस्थेटिक। कलाओं की प्रवृत्तियां एस्थेटिक डिपार्टमेंट में आती है, और रिप्रोडक्टिव प्रवृत्तियां जो है हमारी, वो समाज शास्त्र के क्षेत्र में अभ्यासरत है, उसमें हम अभ्यास करते हैं। तो ये 3 जो डिपार्टमेंट है, वो एक नेचर में से मिला है हमें, दूसरा हमने निपजाया है, और मानव कई तरह से बुद्धिमान है, इसलिए उनकी विभिन्न स्तर की प्रवृत्तियां होती रहती है। तो उनका अध्ययन हम समाज शास्त्र में करते हैं, और प्रतिभाओं को भी हम अनछुने तो नहीं रह पाते समाज शास्त्र के अभ्यास में, क्योंकि ऐसी ही प्रतिभा ने समाज को सुदृढ़ किया है, समाज में एक संस्कृति का जन्म दिया है, क्योंकि समाज की जो पहचान होती है वो संस्कृति से होती है, और सांस्कृतिक मूल्य समाज को बढ़ावा देता है। दोनों अंग और चमड़ी का संबंध बोलते हैं, ऐसा दोनों में संबंध है, वो तो हम जानते हैं। तो संस्कृति के जो पहलू होते हैं, उनको ही कला में कलाकार प्रयोग में लाता है, क्योंकि संस्कृति के जो मूल्य, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो, मैं बहुत पहले गहरी बात नहीं करने जा रहा हूं, ऊपरी छोर पर हम पहले संबंध को देखेंगे। गुजराती संस्कृति का पहला दस्तावेज हमको मिला, वो सुधारक युग में मिला, नर्मद के रूप में। वो आप सब जानते हैं, गुजरात का इतिहास पढ़ते हो या भारत का भी इतिहास पढ़े तो हमें सुधारक युग जो है, उनमें से कई, राजा राम मोहन राय को हम याद कर सकते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद कर सकते हैं, महाराष्ट्र में हुए कई ज्योतिर्धर्म को हम याद करेंगे। उन्होंने सामाजिक चेतना का उत्थान करने के लिए, इससे पहले भी समाज तो था, जो बदलाव आए अंग्रेजों के आने के बाद, मैकोलॉजी जो हमने शिक्षण प्रथा का स्वीकार किया, उसके जो पहले चरण में जो फल प्राप्त होने लगे, उसमें ये संसार सुधार की बात, समाज सुधार की बात बहुत ही केंद्र में। कई संप्रदाय भी उसी समय में प्रकट हुए, नए संप्रदाय, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, मिशन, रामकृष्ण मिशन इत्यादि की बात हम उनके उदाहरण के तौर पर कर सकते हैं।
दो बात हम साथ में लेकर चलेंगे। एक तो संसार में आ रहे बदलावों को या तो संसार में लाने वाले बदलावों को हमने शब्दों में, कृतियों में, साहित्य के स्वरूपों में लिखकर समाज सुधारकों ने ये परंपरा को मजबूत बनाया। इससे पहले भारतीय कंसेप्ट को यदि देखा जाए तो वेद जो है हमारे चारों वेद, उसमें से जो चित्र मिलता है प्रार्थना है आभार वचन कुदरती तत्वों के प्रति, पर उसमें हमें तत्कालीन समाज के निर्देश मिलते हैं। इस समाज की रूढ़ी, इस समाज की मान्यताएं, उस समाज के मूल्य, उस समाज के जो कार्य थे रोजिंदे जीवन के, उन सब की बात हमें वेदों में मिलती है, कई कथाओं में मिलती है। पुरूरवा से लेकर दमयंती तक को हम वहां से जानते हैं। ठीक है, सबल्टन अप्रोच बहुत देर से आया है, लेकिन भारत में भी देखा जाए तो हर वर्ग के प्रतिनिधित्व, रूप, वर्णन कहीं न कहीं साहित्य कृतियों के जरिए हमें प्राप्त होता है। तो ये समाज और साहित्य का संबंध माँ और बेटा जैसा है, दोनों साथ ही। समाज के बगैर साहित्य और अन्य कलाएं कभी संभवित नहीं है। तो ये पहला मुद्दा हमारा रहेगा कि साहित्य समाज से क्या लेता है। तो समाज की रूढ़ियों को, समाज के प्रश्नों को, समाज के रीत रिवाजों को, समाज में आ रहे बदलावों को टटोलने का काम, उन पर से प्रेरणा लेने के बाद उनको कृति में आलेखने का काम कलाकार करता रहा है। साहित्य कला में तो वो प्रत्यक्ष रूप से करता रहा है। अन्य कलाओं में थोड़ा भिन्न है, क्योंकि वो चाक्षुष कला है, श्रवणीय कला है। कविता में समाज का प्रत्यक्ष निरूपण होता है, वो प्रशिष्ट कला की बात हुई। लेकिन लोक कला में, लोकगीत में तो आप देख सकते हैं कि सीधा ही आलेखन होता है समाज का। बेटी को कहाँ देना, कौन सा ससुराल ढूंढे, उनके लिए जिक्र करने वाले कई लोकगीत कश्मीर से लेकर मौलिक भेद जरूर है, लेकिन उसमें कॉमन तत्व भी इतने हैं। अफगानिस्तान, ईरान के पूर्व छोर से लेकर अभी जो पाकिस्तान में भूमि है, वो सब जगह में कॉमन तत्व है। लोक विद्या में कई कॉमन तत्व दिखे जा रहे हैं। भले धर्म का बदलाव आ गया हो, भले हम देखें कि सांप्रदायिक असर मिली हो, या तो भाषा की चेंज हुआ हो। 2000 देखे ईस्वी सन की दूसरी तीसरी सदी से गुजरात में रुद्रदामा का राज्य था, तब से लेकर आज तक, कश्मीर से लेकर केरल तक देखे तो लोक विद्या में कई तरह की एक समानता दिख जा रही है। उसके भी कई कारण हैं, वो भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि सामाजिक रीति जो भारतीय थी उसमें कई ऐसी बातें थी जो हमें याद रखनी चाहिए। ख्यात परंपरा राजस्थान में जो बहुत ही प्रचलित है, राजस्थान और गुजरात कई सदियों तक जुड़ा हुआ रहा है, तो कल्चरल एक विविधता है उनमें। भाषा की एक विविधता भी काफी समय तक एक सी रही है। मीरा जितनी राजस्थान की है उतनी ही गुजरात की है। गुजरात के दयाराम हो, नरसिंह हो, या तो कबीर से लेकर कई संत हो। गुजराती साहित्य के सुप्रसिद्ध कवियों ने व्रज भाषा में लिखा है, राजस्थानी, जूनी राजस्थानी गुजराती भाषा में लिखा है। कई कृतियां ऐसी मिलती है, कई हस्तप्रत ऐसी मिलती है। 800 साल से तो देखा जाए तो कई राज्य तंत्र ऐसे थे जो दोनों राज्य में अत्यंत प्रभावित हुए थे। केवल राज्य का जो आदान प्रदान होता है वो केवल राजा के स्तर पर नहीं रहता,
गुजरात के कई राजाओं की बेटियों का लग्न राजस्थान से लेकर नेपाल तक हुआ है, कश्मीर तक हुआ है। और राजघराने राजकुंवरियों का लग्न दक्षिण तक करते रहे हैं। कर्नाटक की मीनलबाई हमारे गुजरात के सिद्धराज की पत्नी हुआ करती। तो ऐसे कई उदाहरण हमें मिलेंगे इतिहास, जो कि वो एक दूसरे स्टेट के साथ जो संबंध थे उनके प्रमाण है। तो इतिहास, समाज, संस्कृति और कलाएं वो एक दूसरे के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई होती है। समाजशास्त्रीय अध्ययन ज्यादातर स्तर पर ये फील्ड वर्क के रूप में किया जाता है, मतलब कि वर्तमान समाज को देखकर ज्यादातर संशोधन करते हैं और उनके लिए जो हमने ढांचा तैयार करते हैं, संशोधन प्रविधियों को अपनाते हैं, वो ज्यादातर पश्चिमी पद्धतियां हैं। इसलिए हमें दिक्कतें भी आती हैं। गुजराती हो या तो भारतीय कल्चर को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए हमें अपने औजार बनाने होंगे। साहित्य कृतियों से समाज शास्त्रीय अध्ययन करने का प्रवाह चला है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। गुजरात में एक कोऑर्डिनेटर राजेंद्र भाई ने भी वो काम किया है। अगले जो उनके हेड थे गौरांग जानी, समाज और साहित्य, विद्युत जोशी जैसे नाम मुझे याद आ रहे हैं, अन्य राज्यों के नाम भी हो सकते हैं। कई संशोधक ऐसे हुए जिन्होंने साहित्य कृतियों को आधार रखकर संशोधन किया हो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण में समाज में सब कुछ सम्मिलित है, हम समझते हैं। विज्ञान भी समाज में है, ज्ञान भी समाज में है, प्रकृति भी समाज का ही हिस्सा है। प्राकृतिक असर का अध्ययन समाज शास्त्र का में निहित है। तो समाज शास्त्र तो सबकी जननी है, सब शास्त्रों। तो ऐसे माहौल में समाज शास्त्र के स्टूडेंट, समाज शास्त्र के अध्यापक कलाओं के प्रति उदासीन रहे तो नहीं चलेगा। हमें पता होना चाहिए कि गुजरात और गुजरात के अलावा भी जो पश्चिमी राज्य है भारत के, उनमें आई लोकदेव और लोकदेविया जैसे रांदल, मेलडी, वहाणवटी, ये सब लोकदेविया है। वो कहाँ से आई, कौन सी संस्कृति से आई और यहाँ का कौन सा रूप अपनाया। गुजरात में कहीं पुरोहितों को उत्तर भारत से लाया गया था। उनके साथ केवल व्यक्ति नहीं आते, केवल कुटुंब नहीं आते। यादव आए थे मथुरा से द्वारका तक, तो केवल वो अपने कुटुंबों को, अपने बच्चों को लेकर नहीं आए थे, उनके साथ अपने सामाजिक रीत रिवाज भी लेकर आए थे, जिसका प्रभाव पूरे पंथक में देखा जा सकता है। मैर कौम में, आहिर कौम में, यहाँ जो गुजराती ये प्रजातियां है, तो उनका संबंध उत्तर भारत से सीधा जुड़ा हुआ है। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, इसके लिए साहित्य कृति दो तरह से हमें उपयोगी हो सकती है। एक तो उनमें से हमें समाज के तत्कालीन रूप मिलेगा। उदाहरण के तौर पर बात करूं तो हम सब जिनको नाम से जानते हैं, बहुत बड़े आदर से जानते हैं, वो हेमचंद्राचार्य जी जैन साधु थे। साथ साथ वो भाषा विज्ञानी भी थे, व्याकरण के बड़े ज्ञाता थे, साहित्य में बहुत ही बड़ी रुचि थी। तो उनके जो शिष्य सिद्धराज थे, सिद्धराज के नाम में दूसरी बार आया। सुवर्ण काल है गुजरात का, जो सोलंकी वंश का इतिहास। उनसे हमें जो देखा जाए
तो वो हेमचंद्राचार्य का ग्रंथ, जिनको हाथी पर बिठाकर उनकी यात्रा निकाली थी, शोभा यात्रा निकाली थी, वो ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन, उनमें केवल व्याकरण की चर्चा नहीं, केवल कथानकों की चर्चा नहीं, उनमें तत्कालीन गुजराती राजस्थानी बॉर्डर का जो समाज है, समाज के वर्ग है, उनकी भी चर्चा है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर तब प्रचलित दोहे दिए हैं, समझाने गए थे वो व्याकरण, लेकिन जो दोहे मिले तब जो प्रचलित थे उनमें से मिलता है, भला हुआ जो मारिया बिहड़ी मारा कंथ, जा बप्पी की बोहड़ी चिंपत जय अवरैन। ये जूनी गुजराती है, आज से 1000 साल पूर्वे की गुजराती है, लेकिन है गुजराती और राजस्थानी का मिश्रण। कहना ये चाहते हैं वो दोहे में, ये अच्छा हुआ जो मेरा कंथ युद्ध में मर गया, उनकी अंतलियां निकल गई है, वो मर गया रण में, उनका शव पड़ा है बेर बिखेर होके। भला हुआ जो पीठ दिखाकर वापस आ गया होता घर पे, तो मैं अपनी सहेलियों को मुख कैसे दिखा पाता। देखे, ये तब का वीरता का मूल्य है, उस समय का, जो आज से 1000 साल पहले की स्त्रियां सोचा करती थी। वीरता का मूल्य है। युद्ध में जाने वाला पति पीठ दिखाकर वापस आए तो ऐसा पति की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, इससे अच्छा है मैं विधवा होकर रहूं। ये आवाज है, उस समय की आवाज है, उस समय की जरूरत है। उस समय में कितने युद्ध होते होंगे, इस समय मातृभूमि के लिए कितने सख्त देशदाज होगी, वो इसमें से प्रकट होता है। उसी तरह तब तो विदेश कहीं यूरोप नहीं था, अमेरिका नहीं जाते थे लोग। राजस्थान के मेवाड़ वाले या तो पुष्कर वाले या तो कश्मीर का कोई आदमी गुजरात में कमाने के लिए जब आता था, व्यापार के लिए आता था। गुजरात अभी से नहीं है व्यापार केंद्र, 2000 साल का इतिहास है, 2000 साल से पहले का भी इतिहास है। हड़प्पा और सिंधु खीण, जिसकी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ये संबंध की। तो एक दूसरा दोहा जो है, उड़ावंती वायसु दिठ सड़सत, आधा वलय मही ही गया आधा फुट तड़त। ये गुजराती, अभी ये हिंदी में करके आपको बताऊं कि वायसु मतलब हम कौवे को वायस बोलते थे, संदेशा वाहक था। घर पर आकर जो कौवा बोले तो माना जाता है कि कोई प्रिय व्यक्ति आने वाले हैं घर पे गेस्ट के तौर पर। ऐसी ये मान्यता है पूरे प्रदेश में, शायद पूरे भारत में होगी। तो कि वो वायस को देखकर विरहिणी जो युवती थी, पति की राह देख रही थी। पति गया है परदेश व्यापार करने के लिए कई सालों से। पहले तो ये फोन नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, तो मैसेज नहीं कर पाते थे, नहीं तो वीडियो कॉल कर पाते थे। पत्र, तार, टपाल भी हम जानते हैं अंग्रेजों के आने के बाद ऐसी सामान्य जनों के लिए सुविधा हुई है। हाँ, पत्र व्यवहार, लेकिन राजाओं और श्रेष्ठियों तक सीमित था। बाकी प्रजा तो कम्युनिकेशन के लिए इतने सहज नहीं थे। तो ये प्राकृतिक जो चीजें होती है उन पर आधारित थे। इनके लिए तो सबसे बड़ा महाकाव्य विश्व का जो विश्व प्रसिद्ध हुआ है, विश्व में जिनकी बहुत ही गणना होती है, ऐसा मेघदूत। हम मेघ से कम्युनिकेट करते थे। वहां युवान यक्ष अपनी प्रिय पत्नी के साथ बात करने के लिए मैसेंजर का उपयोग नहीं कर पाता था, मेल नहीं कर पाता था, तो तब हमने मेघदूत लिखा था। तो ऐसे तो कई संदेशक रास है, कई कृतियां है जो हर समय के युवानों की
हर समय के मानव संवेदनाओं को, हर समय के मानव की समस्याओं को उजागर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, सामने वाले तक पहुंचने के लिए ये सब चीजों का हम उपयोग करते थे। और साहित्य कृति और शब्द ने तो सदियों से यही किया है। तो वो वॉइस वाली बात थी। गृहिणी युवती देखती है कि अपने घर पर एक कौवा बैठा है और बोल रहा है, तो वो थोड़ी गुस्से में आ जाती है। तू हर बार आता है और बोलता है, लेकिन वो तो आते नहीं। उस समय बोलते हैं वायस को उड़ाने के लिए, उन कौवे को पर जो गुस्सा है ना, तो वो कंकर लेने के लिए वो झुकती है। तो हाथ में जो पहने कंगन है, आधा वलय मही गया, आधे कंगन इतनी वो कमजोर हो गई है, उनके हाथ इतने पतले हो गए हैं कि आधे वलय निकल गए। और कंकर उठाकर वो जो काग था उनको मारा और वो उड़ गया। तब उन्हें नजर आया, सामने क्षितिज पर देखा तो उनका पति, उनका प्रियजन दूर से दिखाई पड़ा। और इतनी वो हर्षान्वित हो गई, उभरा आया, वो इतनी खुश हो गई कि आधा वलय फुट तड़त लोही की भरती आई। शरीर इतना आनंदित हुआ कि आधा वलय फुट ही तड़त, और बाकी जो बचे थे वो वलय खुशी के मारे टूट गए। देखो, ये 1000 साल पुराना उदाहरण है। समाज और साहित्य ये प्रकट करते हैं। कलाओं की बात करनी है, मुझे केवल साहित्य की बात नहीं करनी। तो मैं ये हमारे वहां चित्र और शब्द की युति आदि काल से रही है। केवल गुजरात में ही देखा जाए तो यहाँ के पाटन के भंडार, अहमदाबाद, बड़ौदा, पुणे में भी है, पेंसिल्वेनिया में भी है, जर्मनी में भी कई यूनिवर्सिटियों के हस्तप्रत भंडार में गुजरात की हजारों लाखों हस्तप्रत पड़ी हुई है, जिनका कोई उद्धारक अभी मिला नहीं है। होगा, हम आशा रखते हैं कि जरूर होगा। तो इस हस्तप्रत में एक दिशा में एक साइड पर लिखा होता है। उदाहरण के तौर पर कहूँ तो भगवत गीता या महाभारत या कोई स्थानिक यहाँ कादम्बरी मैं कहता हूँ तो बांध की कादम्बरी, लेकिन कादम्बरी मतलब नवल कथा भी होती है। नवल कथा तब नहीं थी, प्रबंध थे, कहीं और रूप थे, ख्यात थे। तो वो एक साइड लिखना और पास में चित्र दौड़ने की परंपरा थी। तब के चित्रकार ने बनाए हुए कई चित्र हमारे हस्तप्रतों में है। चित्रों का संबंध कैसे देखा जाए तो चित्र में तो सीधा प्रदर्शित होता है समाज। उस टाइम, उस समय कान के इयरिंग्स कैसे थे, बाल में वो किस तरह के तिलक करते थे, आंख में कैसे सुरमा नहीं था, काजल का उपयोग किस तरह से होता था, हाथ में मेहंदी कैसी होती थी, अलता कैसे लगाया जाता था, ब्लाउज कैसे थे, वो लग्न का हो, जन्म का हो, सीमंत का हो या तो मृत्यु विधि हो, उनके चित्र मिलते हैं हमें, 1000 साल के मिलते हैं। तो उस समय के समाज में प्रचलित रीत रिवाज, उनके मूल्य, उनकी अपेक्षाएं, उनकी कल्पनाएं हैं। सभी कलाकार यथातथ आलेखन नहीं करते हैं, वो मैं समझता हूं, मैं जानता हूं। कलाकार कल्पनाशील होते हैं, वो अपनी ओर से कुछ उमेरण करते हैं, वो दृष्टिकोण अपना अलग से लाते हैं। तो यथातथ समाज नहीं मिलता है, लेकिन समाज का दूरवर्ती चित्र जरूर मिलता है। मैं वही कहना चाहता हूं
तो प्राचीन काल से यह चित्रों की जो परंपरा है वो उसमें समाज बहुत ही गहन रूप से आलेखित हुआ है। हमारे जो कथा घटक है, जिनको मोटिव बोलते हैं हम कलाओं के स्टूडेंट्स, वो मोटिव भी कॉमन होते हैं। कई कॉमन मोटिव मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो हिमाचल प्रदेश में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ भीम, यहाँ वो 5 पांडव आए थे, वहां ही वहां भीम की पत्नी, नाम अभी गया स्मृति से, हिडम्बा, जो अभी हिमाचल में हिडम्बा माता के रूप से जानी जाती है और वहां उनकी पूजा होती है। वो है कुल्लू में, उनका बहुत बड़ा मंदिर है और हर साल बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय मेला होता है। कई लोग आते हैं और 5-6 साल तक अभी 2-3 दशक पूर्व वहां बहुत बड़े बलि चढ़ाए जाते थे, उनके लिए भी बहुत बड़ा इसमें एक सम्मानीय देवी हिडम्बा जी। वो हिडम्बा की कहानी गुजरात में भी मिलेगी। पांचाल प्रदेश की द्रौपदी, वहां भी पांडव आए थे। दक्षिण में जाएंगे साउथ इंडिया में तो वहां भी मिलेंगे। देश में ही तो कंबोडिया जैसे प्रदेश में भी राम कथाएं अपने अलग रूप से, अलग भौगोलिक रूप से, अलग सामाजिक रूप से, जो रीति रिवाज है, जो खान पान है, उनकी असर से जो बदलाव आते हैं वो उनका मैं निर्देश करना चाहता हूं। तो वहां के जो चित्र है उसमें राम अलग है। हिमाचल के राम या हिमाचल के पांडव, हिमाचल के जो लोग हैं वो पहाड़ी रूप के लोग हैं। गुजरात और महाराष्ट्र या राजस्थान में जो प्रजा शास्त्रीय एंगल भी है इसमें, वहां देखेंगे अभी जो पाकिस्तान में हिस्सा है, वो सिंध हो या कराची, वो पूरा प्रदेश हो, पंजाब हो या तो गिलगिट हो, वहां सब जगह देखेंगे तो एक वंश की प्रजा आई है। बदलाव आ गए, काफी बदलाव आ गए भाषा के तौर पर, काफी रीति रिवाज के तौर पर, लेकिन मोटिव में बदलाव नहीं है। वो मैं बताना चाहता हूं। कई कॉमन है, कई तत्व ऐसे हैं जो कॉमन होने के बावजूद हमारे सौराष्ट्र में देखा जाए तो कई मुस्लिम ऐसे भी है जिनकी कुलदेवी है, कुल देवता है। जन्म और मृत्यु के बारे में जो सोचा गया है, भारतीय कंसेप्ट है, भारतीय फिलॉसफी है, उनका प्रभाव ये सब प्रजा पर है कहीं ना कहीं। कहीं माने न माने वो बात अलग है, और वो सब प्रकट हुआ है। कई मुस्लिम कलाकारों ने, कई समाज शास्त्रियों ने, कई क्रिटिक्स ने ये बात अपने लेखों में करी। ह्यूएन सांग जो 6ठी सदी में आया था, उन्होंने जो गुजरात का आलेखन किया है वो हमारे सामने है। गुजरात में बौद्ध धर्म कितना प्रचलित था, और तारंगा से लेकर देवोनी मोरी गांव है खेड़ ब्रह्मा के पास, वहां जो स्तूप मिला, वहां जो हमें अन्य आनुषांगिक एविडेंस मिले हैं, वो ये संबंध प्रस्तापित करता है। मैं पहले मैकोलो से मैंने बात शुरू की थी, मैं वहां नहीं जाना चाहता क्योंकि उनकी बहुत चर्चा होती है, तो उसमें नहीं जाना है। और नई शिक्षण नीति में ये बात बहुत जोर शोर से करते हैं, तो भी मैं इसलिए उसमें नहीं जाता, मैं पीछे जा रहा। आगे देखे, सिंधु खीण की संस्कृति में देखे, एक स्थापत्य कला के उत्तम एविडेंस सिंधु खीण में हमें मिले हैं, जो ईसा पूर्व 35 से लेकर 2000 तक चली हुई थी, ऐसा इतिहासविदों का मानना है।
इतिहास के जो एविडेंस होते हैं, इतिहास एविडेंस के बिना नहीं होता, वो तो हम सब जानते ही। इतिहास के जो दस्तावेज हमें मिले हैं उनमें कई है। हमने अभी वो सिंधु खीण की जो भाषा थी वो नहीं हम नहीं समझ पाए। वो चित्र लिपि अभी समझ से पर है, वो तो हम जानते हैं। वरना हमें वो भी पता चलता है कि उस समय की सोच क्या थी, उस समय कौन से कलाकार हुए थे, वो भी पता चलेगा बाद में, लेकिन अभी नहीं पढ़ सकते। तो हमें आधार रखना पड़ता है मूर्ति कला पर। बहुत सारे मूर्तियां मिली है। नर्तकी की मूर्तियां तो अब विश्व भर में प्रचलित है। उन्होंने एक हाथ में कंगन पहना है, उनके जो बाल है अच्छी तरह से जुड़ा लिया हुआ है, अंग भंगी उनकी बेहतर है। आज से 5000 साल पहले के शिल्पकार ने किया है। उनकी नजाकत देखिए, उनका जो चेहरा है, उन पर जो अभिजात है, संवेदनशील जो चेहरा दिखाई पड़ता है, वो भी देखते हैं। उस तरह अच्छी तरह से दाढ़ी बनाया हुआ, अभी दाढ़ी की फैशन है पूरे देश में। हड़प्पन संस्कृति का जो पुरोहित मिला है, उनके माथे के बाल देखिए, उनके दाढ़ी के बाल देखिए, एकदम सटीक चेहरा, सप्रमाण। मातृओं की मूर्ति, मातृका की मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के वो खिलौने, उस समय हमें सप्रमाणता इतनी है। आर्ट और चित्र और शिल्प, स्थापत्य आदि का नए तरीके से पश्चिमी दृष्टिकोण से अध्ययन करना। हम जो देखे तो हमारे प्राचीन पूर्वज शिल्पकार, हड़प्पा के शिल्पकार, सिंधु खीण के शिल्पकार, जो इसकी वो संस्कृति के आधार मिलते हैं ईरान, मध्य ईरान तक, अफगान तक। तो वहां तक की जो मूर्तियां हैं, जो खिलौने मिले हैं, जो बर्तन मिले, उन पर रंगे हुए चित्र के आछे रूप मिले हैं, वो समाज और कलाओं का संबंध प्रस्थापित करता है। और भारत में एक बहुत ही अलग से देखना पड़ेगा। पश्चिम में देखा जाए तो दो तरह की कला, वो पहले से ही दादा एरिस्टोटल और प्लेटो ने तो रिपब्लिक में बोल दिया था ना कि मेरे नगर राज्य, आदर्श नगर राज्य के लिए कलाकारों को निकाल दो मेरे स्टेट से, क्योंकि वो सत्य का अनुसरण नहीं करते, वो असत्य का 2 पीढ़ी दूर है। मूल आइडिया का प्रतिरूप जो सुथार बनाता, लुहार बनाता है, जो अन्य लोग बनाते हैं, उन पर आधारित वो कविता लिखता है, तो वो तो सत्य से 2 पीढ़ी दूर हुआ। ऐसे कलाकारों को मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि हमारे बनाए हुए योद्धाओं को निर्बल कर देता है, संवेदनशील बना देता है। उनको युद्ध के वक्त अपनी प्रियतमा याद आएगी, अपने माँ बाप याद आएंगे, अपने अन्य फर्ज याद आएंगे, तो युद्ध कैसे करेंगे, राज्य को कैसे साबुत रखेंगे। ऐसा करके प्लेटो ने तो निकाल दिया था, लेकिन एरिस्टोटल ने फिर से कला की महत्ता प्रस्थापित की। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको यह भी बता दूं कि ग्रीक परंपराओं जिसके मूल में पड़ी है, वो पश्चिम परंपरा में कला और साहित्य का संबंध जरूर है, रहेगा ही, पर वहां तर्क और भौतिक बाबतों को पहले से करने का प्रयत्न हुआ है, जबकि भारत में ये सब बाद में हुआ। आदि मानव ने पहले तो अपनी इंद्रियों से जो जगत देखा, अपने आसपास फैली हुई जो सृष्टि है उनको देखा होगा। वो पर्वत हो, झरने हो, नदी हो, क्या तो जो कुछ भी हो, उनको पहले तो उन्होंने जांचा परखा होगा। कई हजारों साल तो इसमें ही बीत गए हैं हमारे।
सामाजिक होने के बाद भी और इससे पहले भी। फिर उनका कौन से असर है, कहीं पॉजिटिव असर देखे तो कहीं नेगेटिव असर देखे, उन पर हमने आरोपित किया, आभार प्रकट किया। जो अच्छे लगे उनको हमने देव बनाया और जो नहीं अच्छे लगे उनको हमने दानव का रूप दिया या तो नकारात्मक ऊर्जा के स्वरूप में उनको पूजा। उनके प्रति भी वो भी हकीकत है ना, नेगेटिविटी भी हमारा जीवन का हिस्सा। नकारात्मक तो है ही, लेकिन नेगेटिविटी भी हम छोड़ नहीं पाते। तो भारत में पहले से ही देखा जाए तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, देव और दानव, ये दोनों तत्वों को कलाओं में कूट कूट कर भरा गया है। कहीं से भी देखे, कलाओं कभी समाज से, धर्म से, इतिहास से, पॉलिटिक्स से कभी दूर नहीं रही, रहना भी नहीं चाहिए। ऐसा संबंध भारत में देखा जाता है। इसलिए हम देखते हैं, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। मैं बात सीमित करना चाहता हूं क्योंकि समय भी बहुत कम है, इसमें तो बहुत बात की जा सकती है, लेकिन विश्व भर में जो कलाओं को देखा जाए तो अभिन्न है, समाज से, इतिहास से, ये पॉलिटिक्स से कभी भी अलग नहीं हो पाए। क्योंकि एक वैसे तो कला बहुत ज्यादातर देखा जाए तो कला वैयक्तिक प्रतिभाओं से निष्पन्न होती है। समूह में होगी, उनका भावन समूह में होगा, बड़ी बात होती, जैसे कि ताजमहल बनाना है तो एक आदमी का नहीं, लेकिन आइडिया तो एक का होगा, इंजीनियर एक होगा, उनका जो आर्किटेक्ट है वो तो एक ही होगा। फिर बाद में समूह का प्रयोग करते हैं और बनाते हैं। कला व्यक्तिगत तौर पर पैदा होती है, लेकिन व्यक्तिगत होती नहीं है। समाज का प्रभाव होता है, फिलोसॉफी का प्रभाव होता है, ज्योग्राफी का प्रभाव होता है, कल्चर का प्रभाव होता है, उनसे वो निष्पन्न होती है। और दूसरी तरफ कई ऐसे प्रतिभाएं आई जिनका प्रभाव समाज गहरे रूप से स्वीकार किया है। ये भगवान व्यास को हम भूल नहीं पाएंगे। महाभारत को निकाल दे, यदि ऐसा कुछ यंत्र भविष्य में आए और हम निकाल दे, दिमाग से ही निकाल दे, भारतीय दिमाग से, नहीं भारत बचेगा। पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, ज्यादातर 80% लोगों ने नहीं पढ़ा होता है ओरिजिनल वर्जन महाभारत का या रामायण का, फिर भी वो अछूते नहीं है। उन पर ये ग्रंथों का प्रभाव, जिस तरह से होमर का प्रभाव यूरोप पर इतना ही है, मिल्टन का प्रभाव उतना ही है, शेक्सपियर का प्रभाव उतना ही रहेगा, पढ़े या ना पढ़े फिर भी। तो प्रतिभाएं, कलाकारों की जो प्रतिभाएं होती है, उनमें जो स्पार्क हुआ होता है, हमारे जो एलियट नामक अमेरिकी क्रिटिक थे, उन्होंने तो बताया था, कैटेलॉग की तरफ होते हैं कलाकार। समाज में एक समाज धीरे धीरे अपनी जो शक्तियां जुड़ाता है, शक्ति एक करता, जिनको हम गुजराती में युग चेतना बोलते हैं, हिंदी में अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन युग चेतना आपको पहुंच जाएगी ये बात। तो युग चेतना ऐसी उभर कर आती है कि समाज का कोई न कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उनको अपने में झीलता, युग चेतना को अपने आप में आरोपित करता है, उनको गर्भ के रूप में, चैतसिक गर्भ के रूप में धारण करता है, और बाद में वो सेवन करता है। उनके कई पहलुओं पर उनकी प्रतिभा काम करती है और बाद में निष्कर्ष के रूप में कृति का जन्म होता है। एलियट ने ऐसा कहा कि कर्ता नहीं, मतलब सर्जक नहीं कृति पैदा करता, समाज कृति पैदा करता है। ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। हमारे
समाज शास्त्र और कलाओं का संबंध जब समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। समाज अपनी जरूरियातों के मुताबिक, सब जरूरियात नहीं होती है, ऐसे स्तर पर बात नहीं करेंगे। क्या बोलते हैं, कमर्शियल लिटरेचर है या कमर्शियल सीरियल हम देखते हैं, वो भी कलाकृति है, लेकिन उसमें युग चेतना नहीं है, उसमें व्यापार है, उसमें दूसरे कहीं अर्थशास्त्र पड़ा है। लेकिन समाज अपनी जरूरियात से जो पैदा करता है वो बहुत ही प्रभावी होता है। और उनका प्रभाव, गोरा का प्रभाव कितना पड़ा है हमारे स्वातंत्र की चळवळ पर, टैगोर का प्रभाव कितना, कई बंगाली सर्जकों ने अनेक क्रांतिकारी पैदा किया। पंजाबी साहित्य में देखे, समाज में देखे, जब जब जरूरियात होती है तब तब युग चेतना, समाज की चेतना जागृत होती है और वो पसंद करती है कोई न कोई प्रतिभा को कि वो उजागर करे अपनी कला को, अपनी कलाकृति में। और वो कलाकृतियां ऐसी होती है जिसका प्रभाव समाज पर बहुत ही बड़े तौर पर पड़ता है। तो ऐसे कई उदाहरण है जिससे बात की जा सकती है। लेकिन अब जो इतिहास के बात रह न जाए इसलिए बात कर दूं। अभी तो साइकोलॉजी भी हम देखना चाहते थे, लेकिन समय मुझे कम दिखाई पड़ता है, फिर भी देखते चर्चा में बात करेंगे तब कई सब्जेक्ट, ये इतना बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है कि ये 1.5 घंटे में नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो पाए मैं करने की कोशिश करता हूँ। इतिहास का संबंध देखा, इतिहास हम साहित्य के कृतियों से भी पाएंगे, वो तो हमने देख लिया, हस्तप्रत है उनमें से इतिहास मिलेगा। जो खुटती हुई कड़ियां है वो हम साहित्य कृति से जोड़ सकेंगे। आपको पता होगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन गुजरात का जो इतिहास लिखा गया उसमें सबसे ज्यादा प्रदान कोई एविडेंस का हो तो वो लिटरेरी जो कृतियां है उनका है। दूसरे नंबर पर मंदिर जो थे, क्योंकि तब कला उसी समय जो शांति का समय था, बहुत ही मंदिर स्थापित किए गए पूरे गुजरात में और राजस्थान में भी। तो वो समय देखा जाए तो इससे भी हमें इतिहास का पता चलता है। ताम्रपत्र होते हैं, वो आदेश देते थे, हुक्म, अशोक का जो शिलालेख है पूरे भारत में फैले हुए, उनसे भी हमें पता चलता है इतिहास का। वो भी साहित्य का ही एक रूप है। सुख तो वो शिक्षण, सामाजिक शिक्षण, इतिहास और कला तीनों का मिश्रण है। तो ये संबंध भी स्वयं स्पष्ट है। सारनाथ का सिंह जो अभी राज्य चिन्ह बनकर भारत के राज्य चिन्ह है, वो भी एक मैसेज दे रहा है, वो भी हमारा प्रतिनिधित्व करता है भारत के मूड का, भारत के सोच का, भारत के उत्तम राजवियों की परंपराओं का, भारत के उत्तम कल्चर का वो प्रतिनिधित्व करता है। ये उनकी विशेषता है। तो कलाओं ने हमेशा आदिकाल से लेकर अभी तक कलाओं ने समाज का बदलता आईना दिया है, बदलता रूप दिया है और समाज को बदलने के लिए भी प्रभावित किया है। मेरा तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जो समाज शास्त्र में, यहाँ गुजरात में तो बहुत कम होता है वो मुझे पता है, गुजरात के बाहर के जो लोग हैं, मित्र है हमारे अध्यापक मित्र, उनको मैं अनुरोध करता हूँ कि आपके वहां कोई न कोई हस्तप्रत ऐसी होगी ही जिनको छुआ नहीं जाए। आप आइए, हस्तप्रत भंडारों में जाइए, अपने स्टूडेंट्स को, आप मार्गदर्शक भी होंगे, पीएचडी स्टूडेंट को, एमफिल स्टूडेंट को, एमफिल तो बंद कर दिया यूजीसी ने, लेकिन संशोधन में टर्म पेपर जो बनाते हैं मास्टर लेवल पर, डिसर्टेशन जो होते हैं, उनमें भी एक 15-20 पन्ने की हस्तप्रत को लिया जाए, उनको उकेला जाए, उनमें आलेखित समाज का रूप, समाज की रीति रिवाज बाहर लाया जाए। ऐसा कुछ काम करना चाहिए। इस तरह से आपको चित्र में रस हो तो वो है, नृत्य में भी बहुत सारे, क्योंकि नृत्य और नाट्य दोनों जुड़े हुए हैं।
और नाट्य तो समाज का सीधा दर्पण है। वो तो समकालीन प्रश्नों को भी इसी बहुत ही असरकारक तरीके से अपने आप में संजोए बैठा हुआ। तो नाट्य की परंपरा आज की नहीं है, 2000 साल से तो हमें बहुत सारे नाट्य रूप मिलते हैं। हम नसीब है कि हमें जो रंगभूमि थी, स्टेज, भारतीय रंगभूमि, उनकी जो डायरेक्टर्स डायरी होनी चाहिए वो नहीं मिलती। मतलब मंचन कैसे किया जाए, किस प्रश्न को किस तरह से देखा जाए, वो सब मिलेगा। संस्कृत नाटकों से तो हम शायद ही परिचित है ही, सब लोग परिचित है। कालिदास, बाण, भवभूति से लेकर सब से परिचित है हम। लेकिन मध्यकाल में जो संवाद नाम से, तब नाटक नहीं रहा, संवाद नाम से जो प्रचलित हुए, ऐसे खास करके बौद्ध और जैन धर्मों में लिखे गए हस्तप्रति अभी पड़ी है, जिनको किसी ने छुआ भी नहीं। समाज शास्त्री है हमारे सामने सब बैठे हैं, तो हमें लगता है कि वो करना चाहिए। तो ये संबंध को देखना पड़ेगा, नए छोर से। ये तो मैंने ऊपरी लेवल पर ही बात की है। उनके आंतरिक लेवल पर जो देखा जाए, मुझे जो दर्द है वो भी आपको बता दूं। भारत में कई यूनिवर्सिटियों अब ऐसी है जिसमें फिलोसॉफी नहीं है। फिलोसॉफी का जो अध्ययन जिस तरह से होना चाहिए वो बंद हो गया है। और कोई भी संस्कृति की जो आत्मा होती है वो फिलोसॉफी में। भारत का नया रूप उजागर करना होगा, भारत को नए तौर से मजबूती से फिर से सोने की चिड़िया बनानी होगी। ये थोड़ा लोकप्रिय रूप बोला मैंने, लेकिन भारत को विश्व गुरु बनाना होगा। तो पहले तो हमें भारत की फिलोसॉफी को कण कण में फिर से अर्चित करनी होगी। जो हमारी जो शिक्षण प्रणाली पश्चिम से आई उनको भी लेना है, उनके अच्छे तत्व बहुत है। हम सब बात कर रहे हैं उनकी वजह से कर रहे हैं, वो भी हम समझते हैं। साथ में ये भी हमें जानना पड़ेगा कि भारतीय त्रिपदी पद्धति थी, पंचपदी पद्धति थी, उनसे हमें फिर से अवगत होना पड़ेगा। भारतीय ग्रंथों को हमें नए दृष्टिकोण से, सामाजिक विविध धाराओं के दृष्टिकोण से, कलाओं की अपेक्षाओं के विशिष्ट दृष्टिकोण से, पुराने प्राचीन रूप को यथातथ रूप में जानने की नए छोर से तैयारी करनी होगी। ऐसा करेंगे तो हम जरूर आगे चलकर जैसा स्वप्न देख रहे हैं ऐसा स्वप्न उजागर कर पाएंगे। मैं यहाँ मेरी बात पूरी नहीं करता, आपको प्रश्न पूछने के लिए मंच को ओपन करता हूँ। शायद मुझे जवाब आएगा तो आपको संतुष्ट कर पाऊंगा, वरना सॉरी। आशा है कि ये मेरे विचार से कुछ 2-3 बात भी आपको नहीं मिली हो तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। धन्यवाद। जानी साहेब, હવે પ્રશ્ન માટે મંચને ખુલ્લો મૂકીએ છીએ। सर जी, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी सर। जी जी, मैं सुंदर आर्मुगम पांडिचेरी से बोल रहा हूँ। जी मैं इंग्लिश और हिंदी में पूछता हूँ। जी। आजकल के नौजवान टीनेजर्स को देखें तो उनका बिहेवियर एंड एटीट्यूड इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज अ फैक्ट। उनको चेंज करने के लिए फ्यूचर जी। इंडिया को फ्यूचर में एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए we have जी। to shape them, we have to shape their attitude and behavior, that is most important। तो उनको उनका एटीट्यूड एंड बिहेवियर चेंज करने के लिए हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा और हाउ वी हैव टू फेस दोस चैलेंजेस? बहुत मुश्किल सवाल है ये तो, लेकिन उसकी शुरुआत हमारे घर से हो सकती है। वैसे मैंने अनुभव किया है, जब तक हमारे घर के बैठक रूम में टीवी रहेगा नहीं तब तक ये नहीं हो पाएगा। हमारे बेडरूम में टीवी को ले जाओ,
बच्चों के बेडरूम में भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे बैठक रूम में जहां हम सब बैठते हैं कुटुंब वाले, वहां ग्रंथ होने चाहिए और मम्मी को वो ग्रंथ पढ़ने चाहिए। पापा को बाद में बोलता हूं, हर एक मम्मी को, मदर को पढ़ने की आदत ही चली गई है। इसका दुष्प्रभाव है, मुझे ऐसा लगता है। इससे क्या होगा, अभी क्या है कि बच्चे बाहर से आते हैं, स्कूल से आते, बहुत ही तेजस्वी पीढ़ी है। मैं आप जैसा सुर नहीं निकाल रहा हूं, मुझे तो लगता है कि बहुत ही बढ़िया पीढ़ी आ रही है, जितनी शायद 5000 वर्षों में नहीं थी, उतनी मात्रा में हम पढ़ने लगे, हम सोचने लगे। ये संक्रांति काल है मेरी दृष्टि से, क्योंकि इस तरह से जो फॉर्मल एजुकेशन कभी भी नहीं दिया गया है। हाँ, वो वंश परंपरागत और जो जरूरी था वो एजुकेशन मिलता था हमारी पुरानी पीढ़ी को। लेकिन ये जो अब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का जो व्याप बढ़ा है, उनके साथ में सपोर्टिव ये जो कम्युनिकेशन के जो साधन मिले हमें, इंटरनेट हो, टेलीविजन हो, ये सब बुरे नहीं है। पुरानी बुरी बनाने वाले जो तत्व है वो अधिक मात्रा में प्रचलित होने लगे हैं, उनको कम करना है हमें। इसके लिए सोच को ही बदलनी होगी, और सोच कहाँ बदलेगी, तो पहले घर से। मुझे ऐसा लगता है हर माँ को और हर पिता को बच्चों के सामने कम से कम 1 या 1.5 घंटे पढ़ना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता रामायण पढ़ो या आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, विज्ञान के पुस्तक पढ़ो, साहसिक नोवेल पढ़ो, यार मैं तो रति भाव को भी पढ़ो, काम पढ़ो, मैं तो वो भी कहता हूं, कुछ भी पढ़ो। लेकिन आपको पढ़ते देखकर अपने बच्चे अपने आप ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा सोचेंगे। वरना क्या होता है, वो जब इंटरनेट पर रहते हैं, मतलब फोन पर रहते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो वहां नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है क्या देना चाहिए सोशल। जाहिर में अपने, वैसे क्या है, हम सब अभी जब बैठे हैं, आपके सबके कैमरे तो बंद है, तो मुझे पता नहीं है कौन पग लंबा करके बैठा होगा, कोई आराम से बैठा होगा, कोई अपना काम करता होगा। ये जो माध्यम की मर्यादा है वो है। वो हम जब क्लास में बैठे हो तो पूरे मैनर से बैठते हैं। हमारे ये जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, मैंने तो अनुभव किया है 21 साल में, ये बहुत ही मैनर्स के साथ हमारे पास आते हैं। लेकिन जो बाहर मिल रहा है उनके साथ ज्यादा टाइम देता है सोशल मीडिया पर। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे तो जरूर रास्ता मिलेगा, और पॉजिटिव है, बहुत कई मायने में पॉजिटिव है, ऐसा मुझे लगता है। शायद ये जवाब दे पाऊंगे, अथवा तो ये मैंने जो कहा वो शायद आपको अच्छा लगे या तो आवश्यक लगे। हाँ जी, थैंक यू सर, आपने मेरा डर दूर कर दिया, थैंक यू। नहीं, हमारे ऐसे तो कई बार ऐसे समय आते ही रहते हैं। हम जब इतिहास पढ़ते हैं या समाज शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें डर नहीं लगता, हमें हाँ जागरूक जरूर होना चाहिए। और आप तो समाज शास्त्री हैं, आप सब कुछ कर पाते हैं। समाज शास्त्र में यदि सहकारी क्षेत्र, यदि ये कंपनियों का ऐसे संशोधन छोड़कर मैंने आगे रास्ते बताए, ऐसे संशोधन पर केंद्रित होगा समाज शास्त्री अध्यापक और विद्यार्थी, तो भी काफी पॉजिटिव बदलाव आएंगे। लेकिन हम छोटे तौर पर संशोधन करने लगे हैं। नरेश जी, आपने बहुत अच्छी बातें भी रखी। हाँ जी, एज अ सोशियोलॉजिस्ट हम कई बार, और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं रिफ्रेशर कोर्स पार्टिसिपेंट, उनमें भी ऐसा हुआ होगा कि कहीं वो पीएचडी करने जा रहे होंगे या कोई आरडीसी में होंगे, तो बहुत से अध्यापक सोशियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सोशल साइंस से जुड़े हुए हैं, वो ऐसा बता रहे हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर में अच्छा सा काम नहीं होता, अच्छा काम हो भी नहीं सकता। तो ये जो बात है, ये रिफ्रेशर कोर्स के जरिए हम दूर करना चाहते हैं। आपका जो 2 लेक्चर, एक वीडियो भी आपका मिला, परसों को वीडियो से भी सम्मिलित हुए थे सभी पार्टिसिपेंट, और आज लाइव सेशन में आपने बहुत अच्छी बात आर्ट और सोशल साइंस के साथ कैसे लिटरेचर के साथ सोसाइटी जुड़ी होती है, और उनकी बात की आपने, डाउन के डांस से पिरामिड डांस की बात की,
वो छोटी छोटी बातें हैं, उसी के वजह से जो लचीलापन आता है एज अ सोशियोलॉजिस्ट, एज अ सोशल साइंटिस्ट और एज अ प्रोफेसर, लेक्चरर, ये बहुत मजा आया। हम आगे चल के दोबारा भी आपको बुला सकते हैं ऐसा रोचक शैली के साथ साथ, जो कंटेंट के साथ रेफरेंस है, कंटेक्चुअल मैनर्स में, वो बात आपने बहुत अच्छी तरह से की। उसके लिए मैं तहे दिल से पूरी यूजीसी एचआरडीसी की हमारी ये टीम है, ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स के सब पार्टिसिपेंट्स और यूजीसी एचआरडीसी की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। हम फिर भी मिलते रहेंगे। और दोस्तों, सेकंड सेशन में हम सब फिर मिलते हैं। तब तक आपकी सबकी हम रजामंदी चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर नरेश वंस अगेन। थैंक यू। सुंदर जी, आपका भी अभिवादन करते हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से इनका परिचय भी करवाया और जो भी बात हुई उसमें आपने एक दो लाइन में ही बहुत कुछ बता दिया सबकी ओर से। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.